India Reads, and today we are going to start the 10th chapter of History of Class 6 NCERT, that is Traders, Kings and Pilgrims. This is part 1. Let's start. Chapter number 10. This is of NCERT. Class 6, and name of the chapter is Traders, Kings and Pilgrims. So students, this is the 10th chapter of the history, NCERT class 6, Traders, Kings and Pilgrims. मीन्स ट्रेडर्स जिसको हम लोग व्यापारी कह सकते हैं, व्यापारी, किंग्स राजे तथा तीर्थयात्री. As you have listened the word pilgrimage तीर्थ यात्रा, and the person who is going for the journey to meet holy places in order to showing the worship, this is pilgrims, तीर्थयात्री, traders व्यापारी और किंग्स राजे. आज हम इनके बारे में जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी कि व्यापार तथा व्यापारियों के बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे. That is about trade and traders. As you know that in the previous chapter we have already discussed one of the major point, that was northern black polished ware. Northern black polished ware. We have already studied about that in the previous chapter. Northern black polished ware, that was the special type of pots as well as the plates, okay, of that time. They named with northern black polished ware, and they have got the name through that because they were found in the particular northern region, as well as their surface was a fine black polished, so it got the name of northern black polished ware. As well as the archaeologists have found so many plates and pots etc. from the excavation from the special sites, and it proved that at that time there was the trade of these things, and we are wonder how these things are available in these sites. But it is possible that the person who was working as a traders have brought the same things from the places where they have made, कि जहाँ पर ये चीज़ें जो पोट्स, जो स्पेशल तरह के बर्तन थे, प्लेट्स थे, वो खुदाई करने पर जो एक पर्टिकुलर जगह पर सभी चीज़ें जब मिली हैं, तो आखिर वो उस जगह पर सारी चीज़ें प्लेट्स पोट्स कैसे आए. तो ये संभावना है कि जिस जगह पर ये चीज़ें तैयार होती थी, मैन्युफैक्चर होती थी, वहाँ से इनको यहाँ लाया गया बाय द ट्रेडर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, उनको बेचने के इरादे के साथ. सो एट दैट टाइम देयर वाज द ट्रेडिंग सिस्टम, एंड मैनी थिंग्स वर देयर विच वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एज वेल एज इम्पोर्टेड. कुछ चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट की जाती थी. देयर आर टू वर्ड, दैट इज इम्पोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें आयात,
एक्सपोर्ट, निर्यात। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि दो तरह का ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, दैट इज अ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आयात, आयात मीन्स आया, the things that came in the country from the other countries or other regions is known as import। जो चीज़ें बाहर से हमारे देश में आती हैं उसको हम लोग इंपोर्ट कह सकते हैं। ओके, और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो चीज़ें निर्यात मतलब यहाँ से हमारे देश से कहीं बाहर जाती हैं, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट। and there are few we have found many symbols and the gold coins in the south region that shows it at that time there was the trade। दक्षिण क्षेत्र में जो है गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट have found gold coins in southern region which tell us about the trade। जो हमें उस समय के ट्रेड और व्यापार के बारे में बताते हैं कि उस समय जो था व्यापार होता था। इट वॉज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द बार्टर, बार्टर सिस्टम, barter system। barter means exchange of things, और barter का मीनिंग है वस्तुओं का आदान प्रदान। The people were doing trade or business in the form of barter। It means that they were exchanging things with each other in the फॉर्म ऑफ बिजनेस और ट्रेड। एक व्यापार, एक बिजनेस इस तरह का भी होता था जिसमें कोई कॉइन्स या कोई करेंसी नहीं ली जाती थी बल्कि चीज़ों का आदान प्रदान आपस में कर लिया जाता था, जिसको हम लोग उसमें जो टर्म दी गई थी उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। एज वेल एज देयर वाज द ट्रेड ऑफ द प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, स्पाइसेस, एज वेल एज द मोस्ट फेमस थिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एट दैट टाइम, दैट वाज द पेपर। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि ट्रेड में क्या क्या चीजें थी पर्टिकुलर। देयर वाज द ट्रेड ऑफ प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, spices, as well as one of the famous thing, pepper, which was very famous in Roman Empire and known as black gold due to its high demand। तो जो उस समय व्यापार होता था, बिजनेस होता था, वो ज़्यादातर जो चीज़ें थी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि कीमती पत्थर, गोल्ड जिसको हम स्वर्ण या सोना कह सकते हैं, स्पाइसेस जो मसाले थे भारत के वो बड़े फेमस थे, एज वेल एज वन ऑफ द फेमस थिंग जो सबसे मेन थिंग थी उस समय की सबसे प्रसिद्ध चीज़ थी पेपर, जिसको हम लोग मिर्च बोलते हैं, विच वॉज वेरी फेमस इन रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर में, रोमन शासन की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, एंड नोन एज द ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स हाई डिमांड। और इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड थी जिसके कारण इसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहा जाता था। ओके,
and next we will talk about the trade and its connection with the Sangam poetry. Yes. Trade according to Sangam poetry or text. संगम संगम साहित्य के अनुसार व्यापार. And yes, student, I want to remind you that in the previous chapters we have already studied about the Sangam poetry or the Sangam text. Okay, Sangam poets were actually these were the collective or group of the Tamil poets that were assembled in some of the halls or places, and where they share their views or just listen or telling their poems. This is known as संगम, क्योंकि जहाँ पर जो तमिल के कवि थे, जो प्रसिद्ध कवि थे, जब वो एक असेंबली में किसी हॉल में कुछ कविताओं को सुनते थे, कुछ को सुनाते थे, उनका आपस में सुमेल होता था, संगम होता था. सो दिस इज नोन एज संगम पोएट्री और संगम टेक्स्ट. तो इनको हम संगम कविता काव्य या फिर संगम साहित्य का नाम दे सकते हैं. ठीक है. तो संगम साहित्य के अनुसार जो था, एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द ट्रेड वाज फ्लॉरिशिंग डे बाय डे. अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द ट्रेड वाज फ्लॉरिशिंग डे बाय डे. तो संगम साहित्य के अनुसार जो उस समय व्यापार था वो काफी प्रफुल्लित हो चुका था और आगे भी ये विकासशील था, यानी कि आगे भी ये विकसित हो रहा था. एज वी हैव स्टडीड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द ट्रेड इट वाज पेपर, दैट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. यस, paper was considered one of the remarkable thing known as black gold. तो इसकी इतनी ज्यादा डिमांड के कारण इसको ब्लैक गोल्ड, काला स्वर्ण या काला सोना भी जो था कहा जाता था. ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. यस, न्यू किंगडम्स हम लोग स्टडी करेंगे नए जो राज्य स्थापित हुए, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. ठीक है, जिसको हम कहेंगे समुद्री तट के पास विकसित नए शासन. Yes, students, and now we will talk about the new kingdoms along the coast. New kingdom, नए शासन या नए राज्य along the coast. Coasts are the
लाइक दिस सी कोस्ट और कोस्ट लाइन, जो समुद्री तटीय रेखा है या समुद्र के तट हैं, वो जो रीजन है उसको हम लोग कोस्ट कहेंगे। समुद्री तट के आसपास जो विकसित हुए नए शासन, हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट स्पेशली दिस साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा था, दैट वाज द रीजन ऑफ साउथर्न पार्ट। देयर वाज द लैंड दैट वाज फिल्ड विद द हिल्स, plateaus, as well as the river valleys. Okay, the southern part of India, which was covered by hills, plateaus, as well as river valleys. Kaveri was the most fertile region. तो जो दक्षिणी हिस्सा था भारत का, वहाँ पर जो कि ज़्यादातर कवर था पहाड़ियों के साथ, प्लेट्यूज जिसको हम लोग पठार बोलते हैं, ओके, और प्लेन्स जिसको हम मैदान कहते हैं। जैसे कि ये हमने वैसे पहले पिछले चैप्टर्स में वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट दी प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड हिल्स, ओके। जैसे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। These are known as hills or mountains. Hills या mountains, ठीक है। This type of structure we can say that the plateau, इनको हम पठार कहेंगे, ओके। एंड जस्ट beside the sea level that is considered as plains. पठार, पर्वत, पहाड़ियाँ या मैदान, ये तीन तरह का जो है लैंड फॉर्म्स होता है मेन रूप से। दिस इज द लैंड फॉर्म नोन एज लैंड फॉर्म इफ विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसको हम लोग लैंड फॉर्म्स कहेंगे, जिसमें कि प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओके, और माउंटेन्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पहाड़ियों के साथ, पठार के साथ घिरा हुआ, साथ में रिवर वैलीज। कुछ रिवर वैलीज क्या होती हैं, कुछ नदियाँ जो घाटी बनाती हैं, वैलीज और घाटी, तो उनको रिवर वैलीज कहते हैं। जिसमें कि कावेरी जो था दैट वाज द मोस्ट फर्टाइल रीजन। उस समय सबसे जो फर्टाइल, जो उपजाऊ एरिया था उस समय, वो था कावेरी, ओके। एंड देयर वाज वी हैव लिसन अबाउट द वर्ड मूवेंडर। The word Movender is famous in Sangam literature. संगम साहित्य में एक शब्द आता है मूवेंडर। मूवेंडर is the Tamil word which means the power of three chiefs or heads of three dynasty। तो मूवेंडर वर्ड जो आता है एक संगम लिटरेचर में, अगर हम पढ़ेंगे तो मूवेंडर इज द तमिल वर्ड, जो कि एक तमिल भाषा का शब्द है, which means the power of three chiefs or heads of the three dynasty, जिसमें तीन डायनेस्टी, तीन सल्तनत की बात की गई है।
उनके पावर की बात की गई है और उनके जो मुख्य चीफ या हेड थे उनकी ओर संकेत किया गया। डायनेस्टी वी हैव ऑलरेडी discussed in the previous chapter when the members of the same family ruling one after another generation to generation, this is known as dynasty। जब एक ही परिवार के मेंबर एक के बाद एक शासन करते हैं तो उसको हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। तो इस डायनेस्टी में जो बात की गई थी तीन पावर्स की, दैट वाज फर्स्ट इज Chols, second Chev, and three Pandyas, about 2300 years ago। ओके, तो जो उस समय दक्षिण में सबसे ज़्यादा दबदबा रहा था, पावर रही थी, वो इस डायनेस्टी की रही थी, तीनों डायनेस्टी की, जिससे ये वर्ड मूवेंडर संबंधित है, जिसका मतलब है जो तीन संबंधित जो इसके कैटेगरी के हैं वो हैं चोल्स, चेर, पांड्यास। ये तीन डायनेस्टी थी 2300 ईयर अगो जो फ्लोरिश करी थी और काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव था। दे हैव टोटली कंट्रोल्ड over these regions, okay, at that time, and they were known as the one of the most powerful dynasties of southern India। और साउथर्न इंडिया में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा जो था प्रभाव बना लिया था। ओके, एंड दे हैव टू मेन टाइप ऑफ सेंटर्स we'll talk about here। Rulers have two main centers for administration। One is inland and other coast। तो उस समय के जो शासक थे उन शासकों में से दो मेन केंद्र उन्होंने अपने बनाए हुए थे अपने प्रशासन के लिए। इनलैंड एक जो अंदरूनी अपने राजपाट को चलाने के लिए, और दूसरा केंद्र जो समुद्र के तट थे, समुद्री तटों के आसपास का एरिया, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, एंड देयर वाज दी मोस्ट फेमस सिटीज एट दैट टाइम कावेरीपट्टनम, दैट वाज दी पार्ट ऑफ द चोलास। कावेरीपट्टनम, as well as we will talk about and Madhuri, which was the capital of पांड्यास। तो इसमें जो दो मुख्य उस समय नगर थे या केंद्र थे जिनकी हम चर्चा करेंगे वो थे कावेरीपट्टनम, दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ द चोला डायनेस्टीज, एंड माधुरी विच वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। माधुरी जो कि पांड्यास की राजधानी भी रह चुकी थी। एंड आफ्टर दैट अराउंड 200 ईयर लेटर, around 200 years later, there was flourishing the great dynasty of Satavahans। और 200 साल के बाद उसके जो थ्री पावर्स में रही थी, चेर, चोल्स एंड पांड्यास, उसके बाद 200 साल के बाद करीब करीब जो एक और वंश वहाँ पर शक्तिशाली स्थापित हुआ, दैट वाज नोन एज सातवाहन, जिनको सातवाहन कहते थे। एंड दी फेमस रूलर
गौतमी इसका जो फेमस रूलर था उसका जो नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। मदर गौतमी बालाश्री। तो जो सातवाहन हुए थे चौल चेर और पांड्या के बाद जो डायनेस्टी आई लगभग 200 साल के बाद, तो उसके बाद जो सातवाहन वंश जो था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुआ दक्षिण रीजन में, साउथर्न रीजन में। और उनका जो मेन जो मुख्य शासक था वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी एंड हिज मदर नेम वाज गौतमी बालाश्री। एंड वी कैन गेट नॉलेज अबाउट गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। तो उस महान शासक सातवाहन वंश के जो महान शासक थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उनके बारे में डिटेल में जानकारी हमें उनकी माँ गौतमी बालाश्री की इंस्क्रिप्शंस तो थी, उनकी शिलालेख जिस पर उन्होंने अपने बेटे के बारे में जानकारी दी, उससे हमें इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है। ओके, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी we have talked about the trade and trading system, and then about the kings and kingdoms. Okay, as well as we'll talk about now the story of the Silk Route. The story of the Silk Route. रेशम मार्ग की कहानी। As students, and this looks a little bit odd that a Silk Route. Silk Route सुनने में थोड़ा ओड लगता है वर्ड कि रेशम मार्ग या रेशम का रास्ता। तो इसको ये नाम कैसे दिया गया, कैसे इसका ये नाम पड़ा, तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। इसके पीछे एक कहानी है, दैट विल डिस्कस नाउ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, रेशम मार्ग की कहानी। आखिर इसका नाम रेशम मार्ग जो था क्यों रखा गया। ओके, As you know that the silk is one of the most popular and a very fine fabric। जैसे सिल्क है, रेशम है, वो जाना जाता है फाइन क्वालिटी के लिए, बहुत अच्छा फैब्रिक जिसको लोग जो है पसंद करते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस टू ऑब्टेन दी सिल्क। लेकिन रेशम को प्राप्त करना जो है इतना जो है आसान जो कार्य नहीं है, इतनी ईजी प्रोसेस नहीं है। फर्स्टली वी हैव टू obtain silk from silkworms. Okay, then woven clothes। तो पहले हमें जो रेशम है सबसे ज़्यादा इसमें प्रोसेस ये है कि सिल्क वॉर्म से जो रेशम के वॉर्म्स होते हैं, कीट या रेशम के कीड़े जो प्रोड्यूस करते हैं, अपने मुंह से लार निकलती है उनके, और जिससे जो है सिल्क तैयार होता है, सिल्क बनता है। उसको बाद में प्रोसेसिंग में ला के वीविंग स्पिनिंग करना पड़ता है, और उसके बाद जाके कहीं उससे जो है कपड़ा तैयार होता है। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क और ईजी प्रोसेस, एज वेल एज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटीज रिगार्डिंग दिस सिल्क। तो रेशम की क्वालिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड अ फाइन टेक्सचर, क्वालिटीज़ की ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी जो है चर्चा में रहता है। एंड एज वेल एज विल टॉक अबाउट सिल्क वाज इन्वेंटेड
about 7,000 years ago in China। तो सबसे पहले जो था रेशम की जो खोज की या रेशम की जानकारी जिन लोगों को सबसे पहले हुई, वो लोग जो थे वो चाइना से थे, यानी कि चीन को सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ था। एंड द ट्रेडर्स हु वर कमिंग और गोइंग टू द डिस्टेंट लैंड्स फ्रॉम चाइना, they were taking the silk along with them, okay, through the deserts, mountains, okay, and with the so many difficulties they have to face during this process। जब उस समय व्यापारी थे या कुछ अमीर आदमी थे, जब वो चाइना से किसी डिस्टेंट लैंड पर, दूर वाली जगहों पर जाते थे काफ़ी, और along with some of the caravans, जो कारवां इज द ग्रुप ऑफ द पीपल, जो कारवां के साथ, कारवां जिसको हम कहते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे मिलकर जब किसी पर्पस के लिए यात्रा करते हैं तो कारवस में जाते थे, ओके। सम टाइम दे वर ऑन द फुट, कई बार वो पैदल भी होते थे, सम टाइम ऑन हॉर्स बैक और ऑन केमल, ओके, और ऑन चैरियट। तो अलग अलग तरीकों के साथ घोड़े पर सवार होकर, ऊंट पर, पैदल, जैसे भी उनको सेटिंग आती थी उसके अकॉर्डिंगली वो जब जाते थे तो दे टेक सिल्क अलॉन्ग विद देम फॉर दी, स्पेशली फॉर द ईरानी रूलर्स। तो वो जो ईरान के शासक थे उनको खुश करने के लिए वो लोग उस समय उनके लिए रेशम जो था, सिल्क था, लेकर जाया करते थे। एज वेल एज द पीपल हु वर लिविंग ऑन द पासिंग रूट, उस पासिंग रूट पर, उस जिस रास्ते से वो निकलते थे वहाँ पर जो लोग रहते थे, दे वर ऑफन डिमांडिंग फॉर द मनी टू लेट देम पास टू द ट्रेडर्स। तो उन व्यापारियों को वहाँ पर भेजने के लिए वहाँ के जो लोग थे उनसे पैसे की डिमांड किया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या था, एवरीबॉडी वांट टू कंट्रोल दीज रीजन्स, इन पर हर कोई अपना जो है कब्जा इन एरियाज में करना चाहता था। वेदर देवर रॉबर्स, चाहे वो ठग थे, और वेदर देवर रूलर्स, चाहे वो शासक थे, ओके। एंड at that time there were the ruling authorities or the emperors who have also controlled on these regions because they wanted to get the benefit of these places. They wanted to get the taxes or the gifts from the people who were coming from the China through these routes। तो उस रास्ते से जो लोग सिल्क रेशम को लेकर आते थे तो इस एरियाज पर उन्होंने अपना कंट्रोल शासकों ने बनाना शुरू किया ताकि उन लोगों से उनको कुछ उपहार मिल सके, कुछ गिफ्ट मिल सके, कुछ सिल्क मिल सके, या कुछ दे आल्सो वांटेड टू टेक सम टाइप ऑफ ट्रिब्यूट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, अलाइक अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। ये भी एक तरह का टैक्स होता है जो गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में लिया जाता है। एंड तो इसके साथ वो क्या करते थे, सो इन द रिटर्न दे वर जस्ट सेविंग और एस्केपिंग दीज पीपल और दीज ट्रेडर फ्रॉम द अटैक ऑफ द रोबर्स एंड दे गिव देम प्रोटेक्शन। तो इसके बदले में वो जो शासक थे वो उन व्यापारियों को ठगों से, लूटने से बचाते थे और उनको जो है सुरक्षा जो थी प्रोवाइड करते थे, ओके। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट at that time the kind of rulers they were considered powerful who were having the control on these regions। and if we'll talk about the control, अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे, नियंत्रण की बात करेंगे, तो उस रूट पर सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण रहा था, they people were known as कुशान्स। About Kushans। Kushans were the famous ruler who were having control on the
Silk Route region, because the Chinese people, they were bringing silk from these routes, so they were known as Silk routes. So it get this kind of name. तो इनको सिल्क रूट का नाम इसीलिए मिला क्योंकि चाइना से जो लोग डिस्टेंस लैंड पे जाते थे कहीं दूर, तो जिन रास्तों से वो सिल्क को लेकर जाते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट अ इजी टास्क, देयर वॉज द डेंजर, डिफिकल्टीज, हिल्स एज वेल एज डेजर्ट्स, तो उनको कई मुश्किलें आती थी, अटैक भी होता था उनके ऊपर, ठीक है, तो रास्ते में पहाड़ भी आते थे, रेगिस्तान भी आते थे, तो उनको इस तरह की मुश्किलों का सामना जो था करना पड़ता था। तो इसीलिए इस मार्ग को जो था सिल्क रूट का नाम उसमें दिया गया। दे वर कंसीडर्ड एज द सिल्क रूट रीजन, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल जो किया था वो कुषाण ने किया था, कुषाण वंश ने किया था। एंड कनिष्क वाज दी मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कुषाण। और कुषाण की अगर बात हम करें तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे फेमस जो शासक हुआ है वो हुआ है कनिष्क, ओके। एंड दे रूल्ड इन द सेंट्रल एशिया around 2000 years ago, okay, and they were having the total control on this particular region, that is the Silk Route. Silk Route जो था रेशम का मार्ग, उन पर उनका पूरा कंट्रोल स्थापित था। एंड they were also using the special type of coins including the gold coin also for the purpose of trade, और उस समय भी व्यापार को मुख्य रखते हुए कई तरह के सिक्कों, स्पेशली जो गोल्ड कॉइन थे, स्वर्ण के सिक्के या सोने के सिक्के, उनका प्रयोग किया जाता था। ओके स्टूडेंट, सो दैट वाज द पार्ट 1, ओके, इट वाज द पार्ट 1 of the chapter number 10, traders, kings and pilgrims, okay. And in our next lecture, in part 2, we'll also discuss about the pilgrims, तीर्थ यात्रियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कुछ और भी चर्चा करेंगे, as well as we'll discuss about the spreading of Buddhism, बुद्ध धर्म के फैलने पर या उनके क्या आगे ट्रेडिशंस थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, okay. And if you are liking our channel and if you are gaining the knowledge, so please like and subscribe our channel. Thank you very much.